Warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine. Today my topic is Unity in Diversity for the Sociology students of class 12th. I am your teacher Irshad Masoodi. As you know, India is a land of unity in diversity with the people with numerous races, castes, creeds, religions and languages living under single political umbrella. Let me first describe the conceptual meaning of unity in diversity. It is actually a concept of unity without uniformity. As you know, unity without uniformity, that means when people belong to different castes, creeds, religions and languages and live under a single political system in a particular country. In short, unity in diversity वो concept है जिसमें लोग मुख्तलिफ castes, colors, languages से belong करते हो और वो सब लोग एक साथ एक ही मुल्क में एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के तहत पीसफुल तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हो. इंडिया इज टाइट actually in a thread of unity. Even after a number of differences are there, but certain differences are there which I am going to describe you consciously. The first factor is geographical factor. The second is social factor. The third is linguistic factor. Fourth one is religious factor. Fifth one is cultural factor. And the sixth one is tribal factor. Let me describe all these in detail. The first one is geographical factor. Geographical factor में या अगर हम geographical point of view से देखें, इंडिया में दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन्स मौजूद है जैसे कि हिमालयन माउंटेन चेन या हिमालयन माउंटेन रेंज. इसके अलावा ग्रेट प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है, डेजर्ट्स है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. और इंडिया में डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है जैसे कि यूपी है जिसमें इट इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और वेरी लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जैसे कि सिक्किम है. इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया में लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट उनका एक दूसरे के साथ है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है. नाउ द सेकंड फैक्टर इज सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर में हमारा मैरिज सिस्टम आता है, फैमिली पैटर्न, किनशिप यानी ब्लड रिलेशन, नेबरहुड आता है. जैसे कि हमारे मैरिज सिस्टम में पॉलीगैमी है जो मुस्लिम्स प्रैक्टिस करते हैं. पॉलीगैमी एक्चुअली मुसलमानों में पाया जाता है जैसे कि एक मुसलमान मर्द एक वक्त में एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है. इसी तरीके से दूसरे हिंदू कास्ट में लोग फैटर्नल पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि उन कास्ट्स में एक औरत बेक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से शादी कर सकती है. नाउ द थर्ड इज लिंग्विस्टिक फैक्टर. Linguistic factor is actually associated with our language system. Initially, 14 languages were sanctioned by Indian Constitution when it was framed by the Constituent Assembly. And now, there are 22 languages sanctioned by the Constitution of India. इसी वजह से इंडिया को मल्टी लैंग्वेज कंट्री भी कहा जाता है, यानी वो कंट्री जिसमें
बहुत सारी जबानें बोली जाती हो, एंड यू नो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इसके अलावा इतनी लैंग्वेजेस होने के बावजूद इस मुल्क में लोग यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से प्रिवेल होता है। नाउ द फोर्थ वन इज रिलीजियस फैक्टर। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। यहां पर बहुत सारी मजाहिब मौजूद है, जैसे कि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो एक साथ एक ही मुल्क में रह रहे हैं। इसके अलावा Hindus are divided in more than 3,000 castes. You can imagine more than 3,000 castes. On the other hand, Muslims are divided in 94 castes. In the same way, Christians are divided in Protestants and Catholics. Despite these multi-religious factors, all the Indians celebrate their festivals together in a great deal, like Eid, Holi, Diwali, Christmas, Good Friday, etc. Now the fifth one is cultural factor. A vast diversity exists in Indian society on cultural basis, like folkways, customs, beliefs, languages, literature, etc. Different states have different types of dances. इंडिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उनका अपना नाचने का तरीका होता है, गाने का तरीका होता है, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से अपने कस्टम्स, बिलीफ्स वगैरह फॉलो करते हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज ट्राइबल फैक्टर। इन इंडिया, hundreds of tribal groups live in mountains, forests, and valleys. Around 560 tribal names have been given in Indian Constitution, which shows tribal diversity in India. Unity is also there among the tribes. Unity is also there in tribal diversity. Most of the tribes in इंडिया आर हिंदूज। वो कबीलों के लोग अपने गॉडेस और गॉडेसेस की पूजा करते हैं, वो अपना मजहब पालते हैं, अपने मजहब का पालन करते हैं, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वो अपनी यूनिटी मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यानी इतनी डिफरेंसेस होने के बावजूद भाईचारा मेंटेन करना, it is a big challenge. Now, M.N. Srinivas, a renowned sociologist, has described two types of unities. First one is horizontal unity and the second one is vertical unity. Horizontal unity, according to Srinivas, is also called as linguistic unity. वो यूनिटी, अगर हम आसान जबान में इसको डिस्क्राइब करें, वो यूनिटी जिसमें लोग मुख्तलिफ जबानें बोलने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ अमन से रहते हैं और वो अपने तरीके से अपनी कम्युनिकेशन बरकरार रखते हैं। नाउ हिज सेकंड पॉइंट इज वर्टिकल यूनिटी। इन वर्टिकल यूनिटी इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। एज इन लिंग्विस्टिक फैक्टर आई हैव डिस्क्राइब्ड द वेरी एसेंस ऑफ caste diversities in India and the unity they maintain with each other. I hope, dear students, you understood this topic. Wish you all the best.